व्हाट इज रिवर्सिबल? रिवर्स का मतलब है कि वापस आना, टू कम बैक। और एबल मीन्स एबिलिटी, एबिलिटी टू रिवर्स, ability to and reverse means reverse or to come back। हमारे पास ना किसका वापस आना, कोई बाइक है नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, किस चीज़ का कम बैक करना, रिएक्शंस का। सो व्हाट इज़ बेसिकली रिएक्शन? रिएक्शन इज़ a chemical change that is represented by equation that is a chemical change, okay, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर आगे क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो इट मीन्स दोज एक्चुअली प्रोडक्ट्स कम बैक, okay, so those reactions which have ability to convert the products into the reactants are called reversible reaction. Let's come towards the definition. The type of reactions, okay, in which products recombine, आपस में दोबारा मिलते हैं, to form reactants बनाने के लिए, are called reversible reactions. Let me give you one example. There is reaction that is called NH3, uh, that is gas. When it reacts with ICL, ICL also in the gaseous form. So at that time ammonium chloride is formed, NH4Cl, that is solid. अच्छा, ये कैसे होता है कि अमोनियम क्लोराइड जब बनता है, इसको अगर हम हीट अप करें, इफ वी हीट अप अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, that is solid, when it is heated, so it produces back all of these things, ये गैस बना देती है और सर ICl बन जाता है। चलें, ये भी गैसेस की फॉर्म में आ जाता है, वो हीट अप कर रहे हैं ना। तो देखें, इसका मतलब ये है कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ICl मिलता है तो आगे अमोनियम क्लोराइड बनता है, और जब इसको हीटअप किया जाता है तो फिर वापस हमारे पास अमोनिया और ICl बन जाता है। सो वी कैन रिप्रेजेंट बाय वन इक्वेशन, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं NH3, instead of writing both of these equations we can write one equation, NH3 that is in the gaseous form, sorry, and plus ICl that is also in the gaseous form, okay, this is the reversible reaction। इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स आगे क्या रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, सॉरी रिएक्टेंट्स मिलकर आगे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एंड दिस प्रोडक्ट इज आल्सो गोइंग टू चेंज इनटू द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये डबल एरो जो होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, इसके सम करेक्टरिस्टिक्स हैं, ज़रा मैं बता देता हूँ इसकी खूबियाँ क्या हैं। इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा कि इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कभी मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। जो ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेगा तो प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ क्या कर, इट नेवर कंप्लीट्स, यू कैन से, ओके, इट्स नॉट कंप्लीट रिएक्शन। क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेगा, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बना देगा, तो ये कम बैक करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे रिएक्शन ऐसे नहीं होते। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। N2 plus 3H2, these are two gases, okay, which when react with each other, so sorry, what happened? So when they react with each other, so they form ammonia gas, 2NH3, okay. So these are interconvertible. The ammonia is the product and these are the reactants. So ammonia can be converted into the reactants and reactants form the ammonia. So this takes place on the both direction. Okay, it has both steps, forward and reverse reaction. ठीक है, forward भी हो रहा होता है और साथ क्या reverse भी हो रहा होता है। This is the forward reaction and this is reverse reaction. So both are taking place. Okay, and both can take place in a reaction that is called reversible reaction. ठीक है जी। अच्छा, this is the second example. This is the first example. And in this way we have many other examples. Okay, third example, let me tell you. H2 plus Cl2. Okay, these are both gases.
and give rise to HCl. That's also gas. Fourth example, but last. Okay, I'm just going to sum up this. Sulfur dioxide or oxygen. We'll see sulfur trioxide. That is gas. All of these are gases. अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास जो irreversible reaction क्या होता है. As we say, irrelevant. As we say, irrelevant, irresponsible. So in the same way, irreversible reaction. Reverse means come back. Sorry, BS. Okay. And able means ability. And ir means do not have. Do not have ability to come back. Means the type of reactions. In which products do not recombine to form reactants. Are called irreversible reaction. Okay, there are many irreversible reactions. For example, CH4 और इसका ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कराएं, आपके पास जो चीज़ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ आपके पास वाटर बनेगा 2H2O. तो बैलेंस इट यू कैन राइट ओवर हेयर. साथ आपके पास हीट बनेगी, दिस इज द कंबशन ऑफ मीथेन. ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ना ये रिवर्स नहीं होता. ठीक है, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल एंड देयर मेनी अदर एग्जांपल्स. तो अभी ज़रा हम देखते हैं, एक होता है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम. व्हाट वी कॉल डायनेमिक इक्विलिब्रियम. Actually, this is a state, the process or state at which rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction. Is called dynamic equilibrium. लेकिन हमारे पास जो एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और वही उसके साथ रिवर्स रिएक्शन होता है, तो वो जब इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट. ये हमारे पास डिकम्पोज भी होता है और रीफॉर्म भी होता है, दिस इज सॉलिड. लेकिन ये जब तक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ठीक है, बनेगी. ये गैस है और ये सॉलिड है. ठीक है, तो देखें ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अब देखें ना, हमारे पास जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है. और जब ये क्लोज सिस्टम के अंदर होता है, यानी कि इसका कोई भी कंटेंट लूज़ ना हो. कंटेंट कौन सा लूज़ कर सकते हैं, अनक्लोज सिस्टम में से या ओपन सिस्टम में से कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ कर सकती है. तो हमने इसको पाबंद करने को सिस्टम के अंदर है, तो होता क्योंकि ये गैस है ना, तो रिलीज़ हो जाती है. तो हमारे पास जब क्लोज सिस्टम के अंदर ये एक प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, क्लोज सिस्टम के अंदर, तो जब क्लोज के अंदर ये हो रहा होता है ये प्रोसेस, तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसकी कन्वर्जन, इसकी फार्मेशन और इसकी डिकम्पोजिशन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
इसकी कंपोजिशन और इसकी जो है वो डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, ठीक है, वो दोनों यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या रहते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक स्टेज आती है कि दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब वो ऐसा लगेगा कि जैसे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और ना ही यूज़ हो रही है, ठीक है, इसके अमाउंट कांस्टेंट है, बट इन फैक्ट इट इज़ इन द मूवमेंट, मीन्स इट्स गोइंग ऑन, ठीक है। लेकिन ये एक कांस्टेंट स्टेट हो जाती है, जितना ये फॉर्म हो रहा होता है इतना ये कंज्यूम हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब ये है जारी, कंटिन्यू, ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपस में बैलेंस में रहते हैं, जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा इसको हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रीज़न क्या है कि हम अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, शुरू में कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो जो इस प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन बनती है ना, तो इन्होंने रिवर्स भी रिएक्शन करना होता है, तो उनकी कंसनट्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता ना कैल्शियम, इसकी कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, इसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती है, तो इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है, ओके, देयर कंसनट्रेशन इंक्रीजेज। अच्छा, तो अब जब डिक्रीज़ होती है कंसनट्रेशन, वहाँ इंक्रीज़ होती है, तो फिर जब कंसनट्रेशन की इंक्रीज़ होगी ना, तो फिर ऐसे से क्या हो जाएगा, रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो फिर फॉरवर्ड स्लो होना शुरू हो जाएगा और रिवर्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे पास एक स्टेज आएगी जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलिए जी, यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे मैं टाइम लिख रहा हूँ, टाइम इज़ इंक्रीजिंग दिस वे, हियर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे क्या होता है, स्लो होता है, और रिवर्स रिएक्शन विद द पास टाइम ऐसे ऐसे इंक्रीज होता है। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, सो बट यहाँ पे आपके पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कंज्यूम हो रहा है। तो रिवर्स रिएक्शन शुरू में देखें ना जीरो था, फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम भी था। अच्छा, जो टाइम गुजरता है फॉरवर्ड कम होता है, लेकिन ये है कि जो रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस with the passage of time, and hence here rate of forward is equal to rate of reverse reaction, and this stage is called dynamic equilibrium। इसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ओके। तो देखें यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जितना रिएक्टर से प्रोडक्ट्स बन रहा है इतना प्रोडक्ट से रिएक्शंस बन रहे हैं। रिवर्सिबल में जो पहले बताया गया था वो ये होता है कि जितना फॉरवर्ड भी होता है और रिवर्स भी होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फॉरवर्ड तेज़ हो रहा हो रिवर्स ऐसा हो रहा हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट रिवर्स इज़ पॉसिबल। लेकिन जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इस स्टेज के ऊपर ना हमारे पास एक प्रिंसिपल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ओके, विल स्टडी राइट नाउ। ली चैटलियर्स principle. What Lee Chatterley's principle describes? According to Lee Chatterley's principle, when dynamic equilibrium is disturbed, when, या आप यूँ कर लें, stress is applied on dynamic equilibrium, and shifts in a direction to minimize its effect.
ये इस तरह डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा कि ताकि जो उसका इफेक्ट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो एक स्ट्रेस लगाई गई है, उसका जो असर है, ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम है ना, ये एक बैलेंस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, ठीक है। तो दिस इट इज़ इनबैलेंस्ड, ओके। तो फिर क्या होता है, जिस उसके ऊपर स्ट्रेस लगती है तो इसको फिर इस तरह मूव करेगा, फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, ताकि उसका असर क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रेस, व्हाट कैन बी द स्ट्रेस, स्ट्रेस कैन बी एनीथिंग, मीन्स आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका, आप कंसंट्रेशन चेंज कर लें, आप उसका टेम्परेचर चेंज कर लें, आप उसका प्रेशर चेंज कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जब आप ये चेंज करते हैं तो फिर इसके ऊपर ये स्ट्रेस आ जाती है। और कैटलिस्ट तो इससे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई असर नहीं होगा, नो इफेक्ट। हाँ, ये है कि कैटलिस्ट अगर हम करेंगे तो हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव जल्दी हो जाएगा। चलें हम वन बाय वन इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, तो इसको हमने देखना है। अगर हम रिएक्टेंट्स को, डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो क्लियर रखें ना जहन में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब क्या करते हैं, अगर हम रिएक्टेंट्स ज़्यादा करते हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, ताकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम से कम करे, ठीक है, या उसको प्रोडक्ट्स की क्या करे, बैलेंस करे, ठीक है। तो अब ज़रा देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर आप कंसंट्रेशन, यानी कि हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और आगे क्या है जी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये प्रोडक्ट्स हैं, आप रिएक्टेंट्स को ऐड करते हैं, इफ़ यू ऐड द रिएक्टेंट्स, तो ये इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, विल इंक्रीज। अच्छा, अगर आप प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, यू ऐड प्रोडक्ट्स, फिर क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन विल इंक्रीज। देखें फिर वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो एक बार डिस्टर्ब हो गया ना, ठीक है, इसको फिर टाइम लगेगा दोबारा अचीव करने में, एक बार डिस्टर्ब हो जाता है, इट गेट्स डिस्टर्ब्ड एंड इट शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, ठीक है, इट गेट्स डिस्टर्ब्ड एंड शिफ्ट्स, ये डिस्टर्ब्ड इसमें नहीं लिखा हुआ, चलें आप ज़हन में रख लें कि इट गेट्स डिस्टर्ब्ड, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस। अच्छा, इसी तरह क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्टेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रिएक्टेंस ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक, प्रोडक्ट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी ताकि रिएक्टेंस को मिनिमाइज़ किया जाए, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो इसको मिनिमाइज, ताकि वो अपना कम बैक करेगा, काउंटर, इसको काउंटर इफेक्ट करते हैं, काउंटर एक्ट करेगा, ताकि उसके असर को, जो डिस्टर्बेंस है उसको मिनिमाइज़ करे, उसके जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज़ करे, ठीक है, और दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हमारे पास है NH3, सॉरी हमारे पास N2 है प्लस 3H2 है, और हम इससे 2NH3 बना रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया, इफ़ वी वांट मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया विल हैव टू इंक्रीज द देयर अमाउंट, हम N2 और 3H2 को इंक्रीज करेंगे, मोर अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ आप देख लें, इसलिए हम एक चीज़ को, अच्छा अगर हम, एक और चीज़ है, अगर हम अमोनिया को निकालते जाएंगे, इसको कम करेंगे, फिर भी ज़्यादा बनेगी, इसको मिनिमाइज़ करें, प्रोडक्ट को निकाल लें। अच्छा, रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट्स को ऐड करें तभी रिवर्स होगा, और रिएक्टेंट्स को निकालें तभी रिवर्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बैलेंस में है। तो उसके बाद हम दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो, यानी कि हम इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है ना वो एंडोथर्मिक को सपोर्ट करेगा,
देखिए हमारे पास दो रिएक्शन होते हैं, ये दोनों यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में हमारे पास जो ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहे होते हैं, इनमें एक फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड अगर हमारे पास एक्सो है तो रिवर्स क्या होगा, एंड होगा। इन दिस केस यू कैन सी दैट फॉरवर्ड इज एक्सो, यानी कि जितना ही हीट रिलीज करेगा इतने ही रिवर्स क्या होगा, एंड होगा। दिस इज द एग्जैक्टली केस, ठीक है। तो अब वो क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंडो इंक्रीज हो जाएगा। जो एंडो का मतलब क्या है, जिसके अंदर हीट जज़ब होती है, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the rate of endothermic reaction। ठीक है जी। और डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, increases the rate of exothermic reaction। देखिए हम ना, एक्सोथर्मिक मतलब है जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, ठीक है। तो जिसमें हीट रिलीज हो। अब देखें हम ना, जब टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फिर तो उसके लिए मसला है। यानी एक बंदा उल्टी कर रहा है, उसको हम कुछ खिला रहे हैं ऊपर से, तो उसको मसला होगा, ठीक है। यानी कि एक ये पहले से रिलीज कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहे हैं, अब मज़ीद उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर इट टू गो इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो हम इसको अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो उसके लिए आसानी होगी रिलीज़ करने में। हम उसका ना एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं और एक हम डिक्लाइन की तरफ लेके जाते हैं, तो उसके लिए हीट को रिलीज़ करना क्या होगा, आसान होगा। और अगर इस केस में हम देखें तो इसे एंडो है, यानी कि इट नीड्स हीट। हाँ, अब हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। दिस इज द सेकंड फैक्टर विच वी हैव स्टडीड, दैट इज द टेम्परेचर। तो आप देखें इंक्रीज इन टेम्परेचर जो किसको फेवर करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज, एक टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो हम अगर उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उसको चेंज करते हैं, या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट होगा, दैट्स आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, यू कैन सी, ठीक है। और डिक्रीज इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो एंडोथर्मिक स्पीड अप हो जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक स्पीड अप हो जाएगा। थर्ड थिंग इज वी हैव स्टडीड कंसंट्रेशन एज वेल, प्रेशर। चलिए जी, प्रेशर के लिए भी हम यही इक्वेशन देख लेते हैं, चलिए कुछ डिफरेंट ले लें। चलिए इसी को देख लेते हैं, कब से हम इसी को देख रहे हैं, 3s2 2 2n3। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम के अंदर जो प्रेशर्स होती हैं ना, इट ओनली अफेक्ट्स गैसेस। यू नो दैट गैस इज अ कंप्रेसिबल। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। अच्छा, इसका 1 मोल और इसका 3 मोल तो कितने हैं, 4 मोल हैं, और इसके 2 मोल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर तो अपने हायर मोल से लोअर मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा। तो ठीक है, अब ज़रा मैं बता देता हूँ कि हम प्रेशर को, इफ प्रेशर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, तो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम हाई मोल्स टू लो मोल्स, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग प्रेशर की बात की जाए, ठीक है, तो ये क्या है, डिक्रीज यानी प्रेशर हम कम करें तो इसके लिए आसानी होगी कि अपना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करें। पहले एक ज़्यादा प्रेशर था, ठीक है, तो उसके 2 मोल्स थे, तो अब जब प्रेशर कम करेंगे तो 2 मोल्स अपने आप को एक्सपेंड करेगा और 4 मोल्स की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। ज़्यादा स्पेस मिल रही है ना, ऊपर से प्रेशर कम है, ठीक है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो होता है
shifts from low mole to high moles। ठीक है जी। अच्छा, आप ज़रा देखें, दिस इज़ ऑल अबाउट द ओके दिस प्रेशर। फोर्थ थिंग जो है वो है कैटलिस्ट। Catalyst has no effect, it doesn't disturb, so it cannot be factor, but I'm just going to add up something। Disturb के लिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सॉरी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ये डिस्टर्ब नहीं करता। अलबत्ता ये होता है कि जब कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं ना, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड को भी इंक्रीज करता है और रेट ऑफ रेस को भी क्या करता है, इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रेस। तो उसके फ़ायदा क्या होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड अर्लियर, हमारे पास लेस टाइम के अंदर हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। लेकिन जब एक बार डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो लिहाजा इसके ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर सिंपल एक साइड का रिएक्शन है तो हम कैटलिस्ट ऐड अप करते हैं तो उसकी वजह से वो वेरिएट कम होता है, उसको स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो but in case of dynamic equilibrium there is no effect of the catalyst on dynamic equilibrium। So these are some factors which we have studied according to Lechatelier's principle which affect the dynamic equilibrium। अच्छा, अब कुछ हो ना मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम जरा देख लेते हैं। इन डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये सिंपली इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, रिवर्सिबल की आगे एक मज़ीद इसकी फीचर आ जाती है डायनामिक, यानी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल होता है हम उसको डायनामिक कर रहे हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, क्लोज सिस्टम के अंदर होता है, इट टेक्स प्लेस इन द क्लोज सिस्टम। दूसरा क्या होता है, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बट concentration of reactants is not equal to concentration of products। हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपके पास रेट इक्वल होगा। ठीक है, रेट फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में इक्वल होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। यू कांट से लाइक दिस। ओके, यानी कि हमारे पास अगर ये रिएक्शन है, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ N2 + 3H2, ये H2 2NH3। ठीक है, जितना ये NH3 बन रहा है इतना ये टूट भी रहा है, ये राइट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स इक्वल है। लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये जितना फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन ये तो इक्वल है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जितनी इसकी कंसंट्रेशन है इतनी इसकी कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन यानी जितनी इसकी मकदार है इतनी इसकी मकदार होगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाओ और फिर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाए और रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो, बस ये है कि बस उसी पे इत्तेफाक कर लें, उसी पे आपस में सेटिस्फाइड हो जाएं और रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो जाए। हमारा मकसद क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती। ठीक है जी। तीसरी चीज़, देखिए हम कहीं से भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे हम प्रोडक्ट से पहले रिएक्टेंट्स बनाएं फिर रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बना लें, पहले रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनाएं फिर प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स बना लें। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ईदर साइड। मकसद क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, इक्वल करना है। ठीक है, फ्रॉम ईदर साइड। 4, इट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अचीव्ड। ठीक है, ये डिस्टर्ब कैसे होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और दोबारा क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। ठीक है,
So these are some points about dynamic equilibrium, very important. अच्छा, तो ये कुछ पॉइंट्स आप देख लें. This is all about the dynamic equilibrium and Lee Chatelet principle.